Hello everyone, class 9th. How are you all? I hope all of you are in good condition. Dear students, as you know that we are learning the chapter 1 chemistry from your science textbook. The name of the chapter is Matter in Our Surrounding. We are now in situation here. We have learned a lot of content regarding the chapter. Now there is a new topic. Today's topic is which we will have to learn. That is the common unit of temperature and SI unit of temperature. तो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नो व्हाट इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैटर स्टेट्स. एज यू नो दैट एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर्स द स्टेट्स ऑफ मैटर्स कैन बी चेंज्ड. द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय टू वेज. फर्स्ट इज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर्स या बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. तो इफ वी चेंजेस in temperature and in pressures, so the states of matter can be changed. So dear students, as you know here कि temperature क्या होता है? Temperature is the degree of measurement of hotness or coldness. यानी ये किसी बॉडी को हॉट या कोल्ड बताता है कि कोई बॉडी कितनी हॉट है और कितनी कोल्ड है. तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट व्हाट इज द हीट. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट इज कंसिडर्ड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ हीट? The property of heat is that the heat can be transferred from body hotter to a body cold. यानी कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, अगर दो मेटल को आपस में, जैसे ये मेटल के बने होते, इनको अगर हम लोग क्लिप कर देते ऐसे, एक बॉडी कोल्ड है, मान लो ये वाला कोल्ड है, ये हॉट है, दोनों को क्लिप कर दिए, तो ये हीट किधर से किधर ट्रांसफ़र होगी? फ्रॉम अ बॉडी हॉटर टू कोल्डर बॉडी. यानी कोई बॉडी अगर हॉट है या कोल्ड है तो हीट ट्रांसफ़र किधर से किधर होगा? From hotter to colder. Yani we can say here that heat transfers from hot body to cold body. So this is the specific property of heat. So dear students, as you know that the common unit means the units which are generally used. As you know that when we want to measure the temperatures, generally we use the specific degree, specific units for measurement, that is Celsius. Celsius is used for measuring the temperature, but Celsius is the common unit. Degree Celsius, which is symbol is that ये degree Celsius. ठीक है, तो ये जो common unit होती है. लेकिन जो SI unit है, SI unit का मतलब होता है कि इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम. तो ये SI सिस्टम क्या होता है? लेट अस डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट द SI सिस्टम. SI सिस्टम क्या है कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स which are considered as the SI units. तो 7 यूनिट हैं जो आपकी वो SI यूनिट होती हैं. वो 7 SI यूनिट कौन कौन सी हैं? 7 SI यूनिट आपकी हैं. लेट अस डिस्कस. पहला देखिएगा मास. ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, third there is a amount of substance, and electric current, luminous intensity, you can see that 1 2 3 4 5 6 and 7. so these are the 7 fundamental units which are used now. so dear students, if you want, these are the fundamental quantities. what will be the its unit, SI unit? जैसे मास को हम लोग किससे नापते हैं? जनरली मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम. लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर स्केल पे. ठीक है, और ये टाइम इज इन सेकंड. टाइम किससे मेजर्ड होगा? सेकंड से. टेम्परेचर यहाँ पे केल्विन से होगा. टेम्परेचर केल्विन. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी मेजर्ड इन मोल से मेजर्ड होगा. इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से मेजर्ड होगा. ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, इसको शॉर्ट में CD लिख देते हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स and we can measure the units quantities in different units
in SI units. So these are the basic fundamental units which you know very well. So dear students, there are derived unit also which can be derived from the fundamental units या SI units. SI units means it is known as the fundamental units. So dear students, here you have to know the temperatures, basic SI units. तो टेम्परेचर की SI यूनिट अभी आपने क्या देखा, केल्विन देखा, ठीक है, केल्विन देखा. फिर आप कहोगे सर ये जो हम लोग यूज करते हैं सेल्सियस क्या है, ठीक है, व्हाट इज द सेल्सियस. सेल्सियस इज द कॉमन यूनिट, ठीक है. ये सेल्सियस इज यूज्ड इन thermometers, in clinical thermometers, in everywhere Celsius can be seen here, but Kelvin also used in SI units for SI unit purpose. So what is the name of the temperatures? That is Kelvin, Celsius and Kelvin. तो जो सेल्सियस की डिस्कवरी किए थे एक साइंटिस्ट थे एंडर्स सेल्सियस. एंडर्स सेल्सियस जिन्होंने ये सेल्सियस डिग्री सेल्सियस की डिस्कवरी की थी, इसलिए उनके नाम पे पड़ा है सेल्सियस. एंडर्स सेल्सियस. और केल्विन की जो बात करें SI यूनिट है, उसकी डिस्कवरी किए थे लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन. तो लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन के नाम पर केल्विन पड़ गया. तो डियर स्टूडेंट्स, as you know that the specific temperatures of different states of matters, just like if you want to convert the solid into gases, solid into liquid, so we have to apply suitable temperatures, यानी the particular temperature on which the solid start to melt. जैसे आइस है, आपने देखा है आइस आपका मेल्ट करना शुरू करता है. मेल्टिंग पॉइंट जैसे आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस से वो मेल्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है. जैसे हमारे बॉडी का ह्यूमन टेम्परेचर, एक हेल्दी पर्सन का ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. तो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर पार्टिकुलर, जैसे आपने देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस. और जैसे इस तरह के टेम्परेचर आपने देखा होगा. तो अब इसकी बात आती है कि हाउ कैन वी इंटर-कन्वर्ट द पार्टिकुलर टेम्परेचर्स ऑन डिफरेंट स्केल. तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द टेम्परेचर. अगर बात करें, अभी मैंने कहा आइस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है आइस का टेम्परेचर. तो ये सेल्सियस में है. अगर मैं बात करूं, इसको मैं कन्वर्ट करूं किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस. ये किसमें है, ये आपका सेल्सियस में है. तो अगर मैं बात करूं, ये इसको अगर मैं केल्विन में लिखना चाहूं तो केल्विन में कैसे इसको लिखूंगा. तो केल्विन में ये होगा केल्विन में होगा 273 केल्विन में होगा, डिग्री नहीं, 273 केल्विन, ठीक है. तो केल्विन में कितना होगा, 273 ये होगा. और सेल्सियस में आपने देखा है कि 0 डिग्री है, ठीक है. 0 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पे ये किस में है, ये सेल्सियस में है और ये केल्विन में है, ठीक है. तो केल्विन इज द SI यूनिट्स. और ये तो अगर मुझे केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, ठीक है, या पार्टिकुलर टेम्परेचर्स सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना है, उसमें 273 ऐड कर देना है. 273 क्या करना है, ऐड कर देना है सेल्सियस में. जैसे मुझे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है. सपोज दैट बॉइलिंग पॉइंट BP ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है. तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का है, तो इसको हमको किस में लिखना है, केल्विन में लिखना है. तो केल्विन में लिखना है, तो टेम्परेचर ऑन केल्विन, टेम्परेचर्स ऑन केल्विन, टेम्परेचर ऑन केल्विन कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑन केल्विन हियर इज रिटन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273. तो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस कितना था, 100 डिग्री, ठीक है, 100 प्लस 273, जैसे ही ऐड करेंगे आ जाएगा 373. तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब उल्टा अगर पूछे, ऑलरेडी केल्विन दिया हुआ हो, ठीक है, ऑलरेडी केल्विन आपका दिया हुआ हो, सेल्सियस में निकालना है, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. जैसे मान लो किसी का टेम्परेचर केल्विन में कितना है, 373 है, ठीक है, 373 केल्विन में है.
इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें आप 273 क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स वी कैन इंटर कन्वर्ट द टेम्परेचर्स ऑन डिफरेंट यूनिट। तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड हियर, dear students, look at the blackboard. Here is a formula written, mathematical formula. You can look here. C stand for Celsius, C by 5, F minus 32 upon 9, R upon 4, K minus 273 upon 5. R is the where C is the Celsius, F is the Fahrenheit, R is the Reaumur, K is the Kelvin. अब केल्विन जो है ये आपका क्या है, ये एसआई यूनिट में आता है। ठीक है, एसआई हो जाता है, ये एसआई यूनिट की बात करिए। ठीक है, जैसे भी आपने देखा कि एसआई है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। तो ये जो कॉमन यूनिट हम लोग यूज करते हैं उसको कैसे इंटर कन्वर्ट कर लें, जैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और केल्विन ये आपका फार्मूला लिखा हुआ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक हेल्दी पर्सन, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है एक फिट पर्सन का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो देयर इज अ फ़ारेनहाइट फार्मूला दिस, तो यू विल अप्लाई ओनली दिस। ठीक है, तो लिखोगे C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। अब सेल्सियस के प्लेस पे क्या पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे 37, तो यू विल राइट 37 अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। तो इसका इधर मल्टीप्लाई 37 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बी देयर एंड 5 होल मल्टीप्लाई हियर, तो 5 F माइनस 5 टू 10, 5 टू 15 16, ये आ गया। तो 9 7 जो 63 के 3, 9 3 27 और 27 6 33 इक्वल टू 5F माइनस 160। ये इसको इधर लाओगे ऐड हो जाएगा 333 प्लस 160, तो दिस विल बिकम्स 3639 384 493 इक्वल टू 5F। तो हियर इज अ 5F इक्वल टू 493, तो F इक्वल टू 493 अपॉन 5, तो यू हैव टू डिवाइड दिस। 493 यू कैन डिवाइड बाई 5, तो 5 9 जा 45 कैरी 4, तो ये आप उतार लोगे 5 हट जा 40, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डेसिमल 0 5 6 जा 30, 98.6 कितना आ जाएगा, अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया तो आया 98.6 फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस को, तो फ़ारेनहाइट में आ रहा है 98.6। अब अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस फार्मूला इन केल्विन, थोड़ा सा देखें। जैसे मैंने कहा था अभी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मुझे यहाँ पे 0 ये वाला लेना है, अब हमको इन दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है, तो C/5 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, 0/5 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5, तो ये 5 0 0 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या होगा, पूरा 0, तो K माइनस 273 इक्वल टू 0, तो K इक्वल टू क्या आया 273, यानी देखो 0 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट किया केल्विन में, तो कितना आया 273 आया केल्विन में। ठीक है, हियर इज अनदर यूनिट्स विच इज ऑलरेडी यूज्ड हियर, दैट इज रूमर। रूमर आपका एक यूनिट होता है, यू कैन कन्वर्ट दिस रूमर आल्सो। देयर आर 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, C सेल्सियस, F फ़ारेनहाइट, R रूमर, K केल्विन। तो यू हैव टू इंटर कन्वर्ट द टेम्परेचर, लेकिन देयर इज अ एक स्पेशल यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पे आता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे वो क्या होता है, इक्वल होता है। वो पार्टिकुलर टेम्परेचर कौन सा होता है, वो टेम्परेचर होता है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर -40 डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखो तो ये -40 डिग्री ही आएगा, -40 फ़ारेनहाइट में आएगा। जैसे
-40 है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व दिस, देखो ये आप दोनों को यूज करोगे, दिस फार्मूला इक्वल, तो c/5, तो यहाँ पर रख दोगे -40/5 इक्वल टू f -32/9, तो मल्टीप्लाई दिस, 9 4 जा 36 माइनस इक्वल टू 5f माइनस 5 2 10, 5 2 15 x 16, इसको इधर लाओगे 5f इक्वल टू -360 प्लस 160, और 360 में से 160 चला गया तो कितना आ जाएगा? 0 0 -200, ठीक है, 5 है, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5f इक्वल टू -200, तो f इक्वल टू -200/5, तो 5 4 जा 20, ये देखो -40 आया फ़ारेनहाइट में। तो देखो सेल्सियस में -40 को जब मैंने कन्वर्ट किया तो फ़ारेनहाइट में -40 आ रहा है, यानी वो टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये, यू हैव टू माइंड इट हियर दैट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस पर प्लस 273, ठीक है। Dear students, I hope all of you have learned it very well कि how can we convert the particular temperatures into different units, और I hope कि you have learned the SI units. SI units क्या होता है? You have to keep in mind कि there are 7 fundamental units which are known as the SI units. So we can derive the many units. There are so many units which are known as the derived unit. Derived unit क्या होती हैं? जो वो मेन यूनिट से डिराइव होती हैं उसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। लेकिन ये एसआई यूनिट जो है, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।